Hello everyone. I Samish Phale, lecturer in Mechanical Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcome you all in the course that is Thermal Engineering for third sem Diploma in Mechanical Engineering. And today we will start with our second chapter, that is ideal gases and ideal gas processes. And today's topic is ideal gas. So, before starting with today's lecture, let us discuss what we have learned in the first chapter. In the first chapter, we have studied what is system, then we have learned what is surrounding, boundary and universe. After that, we have studied the different types of system and different examples of different types of system. After that, we had learned what is properties, and we had seen the two types of properties with example. After that, we had learned the different concept of state, process and cycle. And after that, we had learned what is point and path function. We had studied the different types of energy, and after that we had learned what is heat and work. After that we had learned the concept of entropy. We have learned the different laws of thermodynamics, such as zeroth law of thermodynamics, first law of thermodynamics and second law of thermodynamics. After that we had learned the concept of reversible and irreversible processes, and after that we had learned the concept of Carnot cycle. Then we studied the application of first law of thermodynamics to mm, steady flow processes, and we had learned what is steady flow energy equation. Then we had applied the steady flow energy equation to different devices such as turbine, IC engine, compressor, boiler, nozzle and condenser. And lastly, we have studied the application of second law of thermodynamics to heat engine, heat pump and refrigerator. Before starting with today's lecture, let us discuss what you will learn from today's lecture. After watching this video, the learner will be able to define ideal gas. Ideal gas क्या होती है आप वो define कर पाओगे. Understand the basic concept of Boyle's law, Charles law and Gay-Lucas law. आप बेसिक कंसेप्ट जानोगे बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है और गे-लुकास लॉ क्या बोलता है. और उसके बाद में लास्टली एक्सप्लेन दी एवोगाड्रोस लॉ, और एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है वो आप एक्सप्लेन कर पाओगे. क्लियर है. प्रोग्राम आउटकम मतलब आप क्या चीज़ सीखोगे, कौन से पीओस इस चीज़ से आज के लेक्चर से मैप होंगे, वो होता है प्रोग्राम. तो यहाँ पर ये एक टेबल दिया गया है, इसमें दिया हुआ है कि कौन से पीओस इस चीज़ से मैप होंगे. सो टुडे we will start with our second chapter, that is ideal gases and ideal gas processes. So today's topic is ideal gas. So first discuss what is ideal gas. The ideal gas is a hypothetical gas which obeys the law PV equals to RT at all temperature and pressure is known as ideal gas. आइडियल गैस क्या है, ऐसी गैस जो एक इमेजिनरी गैस है. हाइपोथेटिकल है मतलब इमेजिनरी, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो रियल में है ही नहीं, पर वो कैसे उसको कंसिडर किया जाता है. कौन से गैस को आइडियल गैस कंसिडर किया जाता है, जो भी गैस लॉ फॉलो करेंगे. कौन सा, पी वी इक्वल्स टू आर टी. ये जो लॉ है पी वी इक्वल्स टू आर टी, ये लॉ को जो भी गैस फॉलो करती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ नोन एज आइडियल गैस. और आइडियल गैस का एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सभी जन याद रखना, कोई भी गैस को अपन आइडियल गैस तब ट्रीट कर सकते हैं जब उसका टेम्परेचर हाई हो और उसका प्रेशर लो हो. जब भी कोई भी गैस का टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है, उस गैस को आइडियल गैस की तरह ट्रीट किया जाता है. क्लियर है. तो सभी को समझ में आइडियल गैस क्या है, अ हाइपोथेटिकल गैस
which obeys the law PV equals to RT at all temperature and pressure is known as ideal gas. क्लियर है? तो देखते हैं कुछ अजम्पशंस आइडियल गैस के। तो सबसे पहला अजम्पशन यह है कि अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि जो आइडियल गैस होंगी उसके जो वॉल्यूम होगा वो गैस का, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्या रहेंगे उसके मॉलिक्यूल्स से बन के वो क्या बनेंगी, गैस बनेंगी। तो ये सबसे पहला अजम्पशन है। सेकेंड है तो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विथ वन अनादर एंड विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर इज परफेक्टली इलास्टिक। मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो जब एक दूसरे से टकराएंगे या फिर वॉल को टकराएंगे, जब एक दूसरे से टकराएंगे या फिर कोई अपने जो कंटेनर, जिस भी कंटेनर में उस कंटेनर को वॉल को टकराएंगे तो उसका कोलिजन कैसा रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब वो अपने ओरिजिनल शेप को नहीं चेंज करेंगे, वो अपने ओरिजिनल शेप में आएंगे, वो क्या अपने मॉलिक्यूल्स से। ये है दूसरा अजम्पशन किसका, आइडियल गैस का। क्लियर है? थर्ड अजम्पशन ये है कि द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू देयर ओन डायमेंशन। मतलब जो साइज का वो मॉलिक्यूल्स रहेगा उस वाले साइज से भी ज़्यादा दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। ये इसका थर्ड अजम्पशन है किसका, आइडियल गैस का। मतलब अगर उसका मॉलिक्यूल्स का साइज 1 सेंटीमीटर है तो जो दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर रहेंगे। दोनों मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, अपने 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर रहेंगे। तो इसका ये है अपना थर्ड अजम्पशन। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्सेज ऑन वन अनादर एक्सेप्ट व्हेन दे कोलाइड। इसका मतलब क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के ऊपर में फोर्स नहीं लगाते हैं। इसका ये है फोर्थ अजम्पशन कि जो भी मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के ऊपर में क्या है, फोर्स नहीं लगाते। इस चीज़ को बोला जाता है आइडियल गैस। क्लियर है? समझ में आ गया सबको आइडियल गैस क्या है? तो आइडियल गैस क्या है, एक हाइपोथेटिकल गैस है जो फॉलो करता है लॉ कौन सा, PV इक्वल्स टू RT। उस वाले गैस को बोला जाता है आइडियल गैस। क्लियर है? सबसे फर्स्ट लॉ देखते हैं अपन, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ बोलता है इट स्टेट दैट इफ अ यूनिट मास ऑफ अ गैस इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, अगर कोई भी 1 किलो गैस अगर अपन ने लिया और उसको मेंटेन किएगा एक ऊपर में कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर में, देन द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट प्रेशर। तो उस गैस का वॉल्यूम क्या बोलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, उसके एब्सोल्यूट प्रेशर को। क्या बोलता है बॉयल्स लॉ, अगर कोई भी एक गैस को अपन मेंटेन कर रहे हैं काय के ऊपर में, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर में, अगर कोई भी गैस को अगर अपन कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर में मेंटेन करके रख रहे हैं तो उस गैस का जो वॉल्यूम रहेगा, उस गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, उस गैस के एब्सोल्यूट प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। उस गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, उस गैस के एब्सोल्यूट प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। बॉयल्स लॉ अगर समझने के लिए आपने सभी ने दवाखाने में जब गए होंगे उसमें एक सिरिंज देखे होंगे, इंजेक्शन जो डॉक्टर देता है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो इंजेक्शन रहती है जब वो आगे वाले पोर्शन में रहती है, जब वो उसका प्लंजर सबसे आगे वाले पोर्शन में रहता है तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है, कम रहता है। उस वाले केस में उसका वॉल्यूम क्या रहता है, कम रहता है। जैसा जैसा वो क्या करता है, वो प्लंजर को पीछे खींचता है, जैसे जैसे डॉक्टर वो प्लंजर को पीछे खींचता है तो क्या होता है, उसका पीछे खींचने के कारण से वो जो प्लंजर रहता है वो पीछे खींचने के कारण से जो इंजेक्शन रहती है उसके अंदर की जो जगह रहती है वो क्या होती है, बढ़ते जाती है। मतलब उसका क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। और वॉल्यूम बढ़ने के कारण से उसके अंदर का जो प्रेशर है, वो सिरिंज के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होता है, कम होते जाता है। तो जो अपनी इंजेक्शन है वो काम करती है किसके ऊपर में, बॉयल्स लॉ के ऊपर में। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इट इज गिवन बाय V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। यहाँ पे 1/P दिया है, मतलब ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको, प्रेशर को। V फॉर वॉल्यूम, P फॉर प्रेशर। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, जब भी कोई गैस कांस्टेंट, T इक्वल्स टू कांस्टेंट, T इज फॉर टेम्परेचर, अगर कोई भी गैस को अपन ने कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर में मेंटेन किया है तो उस गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, उस गैस के प्रेशर को। तो अगर मैं ये इन्वर्ट प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाता हूँ तो यहाँ पे कुछ तो भी एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने V इक्वल्स टू, अगर मैंने हटाया तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाया जो होगा C डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या है P। अगर ये P को मैं उधर लेके गया, ये इधर साइड में डिवाइड में इधर साइड में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा,
V मल्टीप्लाई बाय P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये बॉयल्स लॉ का इक्वेशन बना क्या है, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है? दैट इज वन इज इनिशियल स्टेट। अगर कोई भी एक गैस है उसका इनिशियल स्टेट, जैसा मैंने बताया पहले, प्लंजर जो रहेगा वो स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे रहेगा, तो वो उसकी प्लंजर की क्या है, इनिशियल स्टेट, तो वो अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वन से। वो अपन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वन से। और अगर जब प्लंजर पूरा अपन ने पीछे खींच दी है तो वो क्या हो जाएंगी, उसकी फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट होंगी, तो ये जो फाइनल स्टेट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं टू से। तो अगर मेरे को ये इक्वेशन को पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट अगर दो स्टेट्स के टर्म्स में लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा, P1V1। P1V1 बोले तो प्रेशर एट इनिशियल पॉइंट एंड वॉल्यूम एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल्स टू प्रेशर एट सेकेंड पॉइंट एंड वॉल्यूम एट सेकेंड पॉइंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अपन देखते हैं बॉयल्स लॉ का पीवी और टीएस डायग्राम। तो ये इसमें प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम दिख रही है। यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें आपको दिख रहा है कि वाई डायरेक्शन के ऊपर में मैंने लिया है प्रेशर, जिसको पी से डिनोट करती है, और एक्स डायरेक्शन के ऊपर में लिया है मैंने क्या, वॉल्यूम, जिसको वाई से डिनोट करते हैं। तो ये वाले जो डायग्राम रहती है इसको बोला जाता है पीवी डायग्राम। उसी तरीके से आप दूसरा डायग्राम में देखोगे कि वाई डायरेक्शन के ऊपर में एक चीज़ दिख रही है जो कि अपना टेम्परेचर, और एस डायरेक्शन के ऊपर में एक चीज़ दिख रही है जो कि आपका एंट्रोपी। तो ये इसको एंट्रोपी को अपन डिनोट करते हैं एस से। तो इस वाले डायग्राम को बोला जाता है टीएस डायग्राम। तो जैसा मैंने बताया बॉयल्स लॉ बोलता है कि कोई भी गैस को अपन काय के ऊपर में मेंटेन करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर तो आपको यहाँ पे ग्राफ में दिख रहा है। अपन ने टेम्परेचर कौन से डायरेक्शन में ली है, वाई डायरेक्शन में। तो ये जो ग्राफ बना है इसको मैं वाई डायरेक्शन के ऊपर में स्ट्रेट लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को क्या, T1 इज इक्वल्स टू क्या दिख रहा है मेरे को, T2, मतलब टेम्परेचर क्या है दोनों का कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैंने गैस का इनिशियल 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक की अपनी गैस गई, तभी भी उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अभी देखते हैं प्रेशर और वॉल्यूम में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था वो, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, अपना कम होगा। तो एक पॉइंट था अपना इनिशियल पॉइंट 1 अपन ने लिए। यहाँ पे अपने को प्रेशर, इसको प्रेशर निकालना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन के ऊपर में लेके जाऊंगा। तो ये हो गया मेरा P1 प्रेशर, और इसको मैं नीचे में लाया एक्स डायरेक्शन के ऊपर में, तो ये हो गया मेरा क्या, V1 वॉल्यूम। ये हो गया मेरा क्या, V1 वॉल्यूम हो गया। क्लियर है? अभी ये P1 प्रेशर और V1 वॉल्यूम हो गया यहाँ पर। क्लियर है? तो अभी ये क्या हो रहा है, इस गैस का देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेशर कम कर रहा हूँ। ये वाले पॉइंट पे आऊँगा तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि प्रेशर वाली देखो लाइन इधर इधर जैसा जैसा आ रहा हो, क्या हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। तो जैसा जैसा मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ वो गैस का, वैसा वैसा अपने को दिख रहा है कि ये गैस का देखो ये वाले पॉइंट पे प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ पे भी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सेकंड पॉइंट पे अपने को क्या मिल रहा है, जब मैंने सेकंड पॉइंट का एक्स डायरेक्शन के ऊपर में प्लॉट किया तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा वॉल्यूम V2, जो कि क्या है मेरा V1 वाला, जो पहला वाला वॉल्यूम था उससे क्या है, ज़्यादा है, उससे क्या है, ज़्यादा है। और वही पॉइंट को अगर मैं वाई डायरेक्शन के ऊपर में प्लॉट करता हूँ, वही पॉइंट को अगर मैं वाई डायरेक्शन के ऊपर में प्लॉट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, प्रेशर P2। यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, प्रेशर P2, जो कि P1 से क्या है, कम है, जो कि P1 से क्या है, कम है। P1 का प्रेशर क्या था मेरा, ज़्यादा था, तो वॉल्यूम कम था। P2 का प्रेशर क्या हो गया मेरा, कम हो गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसी चीज़ को बोला जाता है क्या, बॉयल्स लॉ। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, बॉयल्स लॉ। तो समझ में आया सबको, बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी गैस को अपन ने कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर में मेंटेन किया है, तो उस गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, उस गैस के एब्सोल्यूट प्रेशर को। क्लियर है, समझ में आ गया सबको। जो नेक्स्ट लॉ है वो है अपना चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट दैट इफ अ यूनिट मास ऑफ अ गैस इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ काय की बात कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर की। चार्ल्स लॉ काय की बात कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर की। बॉयल्स लॉ काय की बात कर रहा था, कांस्टेंट टेम्परेचर की। ये काय की बात कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर की। तो देन वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो क्या होता बोलता कि जो वो गैस का वॉल्यूम रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। उसका बोलने का मतलब अगर है कि अगर कोई भी गैस है उसका अगर अपन ने मेंटेन करे काय के ऊपर में, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में, तो वो जो गैस रहेगा उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। मतलब जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना वो गैस का टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वो गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा,
कम होगा। क्लियर है? तो इट इज़ गिवन बाय वी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट पी। तो अगर इसको मैंने प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाया तो यहाँ पे क्या आएगा, एक टर्म आएंगी कांस्टेंट जिसको मैंने C इक्वल्स टू दे रहा हूँ, और यहाँ पे टेम्परेचर। तो अगर ये टेम्परेचर यहाँ पे मल्टीप्लाई में अगर इधर साइड में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, V बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर ये 1 से 2 प्रोसेस में जा रहा है तो ये क्या होगा, 1 ये इनिशियल स्टेट थी और 2 फाइनल स्टेट थी। तो ये गया तो क्या होगा, V1 बाई टी वन इक्वल्स टू V2 बाई T2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। जैसा मैंने बताया कि अपन ने गैस कंसिडर करे तो ये बलून है, ये बलून के अंदर में क्या है, एयर फील है। तो इसका प्रेशर तो कांस्टेंट है, अपन ने एक बार ही एयर फिल कर दिया तो उसका प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। पर देखो जैसा ये मैंने ये कैंडल जला रहा हूँ, कैंडल जला रहा हूँ मतलब इसका क्या, मैं हीट दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ मतलब इसका टेम्परेचर, ये एयर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप देखोगे जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बलून का साइज़ भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। बलून का साइज़ भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और साइज़ बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो समझ में आ गया सबको, जब कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में अपन कोई गैस को मेंटेन करते हैं तो उसका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसको, टेम्परेचर को। तो देखते हैं इसका अपन PV और TS डायग्राम। तो यहाँ पे देखो अपन ने क्या कांस्टेंट रखे थे, इसका प्रेशर कांस्टेंट रखे थे। तो यहाँ पे दिख रहा है प्रेशर कांस्टेंट है P1 इज इक्वल्स टू P2, P1 इज इक्वल्स टू क्या है अपना P2, प्रेशर कांस्टेंट है। तो इस टाइम पे 1 वाले पॉइंट पे अपना वॉल्यूम कितना है, V1, 1 वाले पॉइंट पे वॉल्यूम कितना है V1, और ये यहाँ पे 1 वाले पॉइंट पे यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T1। तो अपने को दिख रहा है जब वॉल्यूम कम है, जो वॉल्यूम क्या है कम है, तो अपना टेम्परेचर भी क्या है कम है। और जैसा जैसा 1 से 2 के तरफ में अपन गए तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ते गया। वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ते गया। मतलब V1 से वॉल्यूम कितना हो गया, V2। तो वैसा वैसा अपना टेम्परेचर भी क्या हो गया, बढ़ते गया है। दिख रहा है ये टेम्परेचर भी क्या हो गया, बढ़ते गया। तो समझ में आया सबको। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रहता है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। क्लियर है सबको, समझ में आया। तो जो नेक्स्ट लॉ है वो है अपना गे-लुसेक लॉ। तो गे-लुसेक लॉ क्या बोलता है, इफ़ अ यूनिट मास ऑफ अ गैस इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गे-लुसेक किसके बारे में बात कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में। बॉयल्स लॉ किसके बारे में बात करता था, कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में। चार्ल्स लॉ किसके बारे में बात करता था, कांस्टेंट प्रेशर के बारे में। और गे-लुसेक किसके बारे में बात कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम के बारे में। तो ये क्या बोलता है, अगर कोई गैस का अपन ने उसको मेंटेन करा है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर में, देन द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोलता है, जो भी वो गैस का प्रेशर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब क्या है कि अगर उसका प्रेशर बढ़ेगा तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। कि आप लिखा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट V इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम क्या अपना कांस्टेंट। अगर मेरे को प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाना है तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा इक्वल्स टू T। ये इधर साइड में क्या है, मल्टीप्लाई में इधर में लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा अपना डिवाइड। तो इसको लिखा मैंने P बाई टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये काय के लिए, एक पॉइंट के लिए था। अगर कोई प्रोसेस हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 1 इज इनिशियल स्टेट एंड 2 इज फाइनल स्टेट, ये क्या हो रहा है प्रोसेस। तो ये क्या हो जाएगा, P1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 बाई T2। इस वाले फिगर में दिख रहा है ये एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम क्या अपना कांस्टेंट है, जिसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट रखा हुआ है। इसके अंदर में जो गैस है वो मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इसका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें मैंने एक प्रेशर गेज लगाया जो मेरे को बताएगा क्या, प्रेशर बताएगा। क्लियर है। इसके नीचे में देखना, एक मैंने हीट दे रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, हीट दे रहा हूँ तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ेगा। जैसा ही देखो यहाँ पे बर्फ़ लगा दिया, इसका हीट दे रहा हूँ तो इसका वॉल्यूम क्या, प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी देखना, जैसा मैंने इसको ठंडा कर रहा हूँ, हीट का निकाल रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ तो इसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो समझ में आया। तो वॉल्यूम, जब भी अपन कोई गैस का वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होता है, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसको, एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। क्लियर है। तो इसको PV और TS डायग्राम में देखते हैं। तो इसमें देखो वॉल्यूम अपना कौन सा, वायर डायरेक्शन में। तो यहाँ पे V1 इक्वल्स टू V2 है, अपन ने वॉल्यूम क्या रखे, कांस्टेंट रखे हैं। तो V1 इक्वल्स टू क्या है, V2 है। ये देखो ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर कितना अपना P1 जो प्रेशर है वो क्या अपना कम है। तो अपना उस टाइम पे टेम्परेचर T1 वाला टेम्परेचर भी क्या था,
कम था। उस टाइम पे अपना टेम्परेचर T1 वाला टेम्परेचर भी क्या था, कम था। जैसा जैसा अपन 1 से 2 के तरफ में गए, जैसा अपन 1 से 2 के तरफ में गए, जैसा जैसा प्रेशर बढ़ते गया, 1 से 2 की तरफ में गया तो प्रेशर क्या हो गया अपना, बढ़ते गया। जैसा प्रेशर बढ़ा तो वैसा वैसा अपना टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो T1 से ज़्यादा अपना टेम्परेचर क्या है, T2 पे। तो गेल-लुक लॉ काय के बारे में बात करता है, गेल-लुक लॉ बात करता है क्या के बारे में, कि अगर कोई भी गैस कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर में अपन ने मेंटेन की है, कोई भी गैस को अपन ने काय के ऊपर में मेंटेन की है, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर में मेंटेन किया है, तो उस गैस का जो प्रेशर रहेगा, उस गैस का जो प्रेशर रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। उस गैस का जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके, उस गैस के टेम्परेचर से। क्लियर है, समझ में आया सबको। नेक्स्ट जो लॉ है वो है अपना एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो आइडियल गैस है वो सभी टेम्परेचर के ऊपर, सभी टेम्परेचर और प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर में वो कोई भी आइडियल गैस हो, उसके जो वॉल्यूम रहेगा वो गैस का जो वॉल्यूम रहेगा, सभी आइडियल गैस का वो जो वॉल्यूम रहेगा वो सेम रहेगा किसका, सभी गैस के नंबर ऑफ मोल से। नंबर ऑफ मोल से मतलब वॉल्यूम, ये क्या बोल रहा हूँ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ क्या है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें देखो ये कंटेनर है, इसमें मैंने क्या है, गैस फिल करके रखा है, तो इसका वॉल्यूम देखो पहले क्या है, कम है। इसका वॉल्यूम क्या है, पहले कम है। इसमें मैंने गैस फिल करके रखा था, इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। इसके जो मॉलिक्यूल्स है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये नंबर ऑफ मोल जो है ये इसमें कम थे, तो इसमें वॉल्यूम क्या था, कम था। अभी मैं इसी में क्या कर रहा हूँ, गैस फिर से भर रहा हूँ, इसमें गैस क्या हो रहा हूँ, फिल कर रहा हूँ। अभी गैस फिल कर रहा हूँ मतलब इसमें जो इतने मॉलिक्यूल्स पहले थे उससे ज़्यादा हो गया अभी मॉलिक्यूल्स, इससे मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, उससे ज़्यादा, पहले जितने मॉलिक्यूल्स थे उससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए। तो जैसा जैसा मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं वैसा वैसा इसका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, अपना बढ़ रहा है। तो यही बोलता है अपना क्या, एवोगैड्रोस लॉ, कि अगर अपन ने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा है आइडियल गैस के, अगर अपन ने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा है तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बोलेगा, बढ़ेगा। तो देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पे वॉल्यूम कम था, मोल्स कम थे तो वॉल्यूम क्या कम है, यहाँ पे मोल्स बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। इसमें मोल्स इससे ज़्यादा हो गए, इसके नंबर ऑफ मोल्स ये गैस की इससे ज़्यादा हो गई, तो इसमें वॉल्यूम क्या हो गया, और ज़्यादा हो गया। तो समझ में आया। तो एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है कि जो भी वॉल्यूम है आइडियल गैस का, जो भी वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसको, नंबर ऑफ मोल्स को। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे उतना ज़्यादा क्या रहेगा, उसका वॉल्यूम रहेगा किसका, आइडियल गैस का। क्लियर है, समझ में आ सबको। नाउ लेट अस समराइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। आज अपन ने क्या क्या पढ़ा है, चलो उसको एक बार समराइज करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस क्या होता है, अपन ने देखा था कि जो भी गैस PV इक्वल्स टू RT, ये लॉ को फॉलो करती है, PV इक्वल्स टू RT एट ऑल टेम्परेचर प्रेशर, ये लॉ को फॉलो करती है, उस वाले गैस को बोलते हैं कौन सी गैस, अपन आइडियल गैस। फिर उसके बाद में अपन ने देखा क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेलुसेक लॉ। अपने देखा कि बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई गैस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर में मेंटेन करेंगे अपन, तो उस गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उस गैस के प्रेशर को। तो इसको याद रखने के लिए हरदम याद रखना क्या, BT। बॉयल्स लॉ को याद रखने के लिए हरदम क्या याद रखिए, BT, B फॉर बॉयल्स एंड T फॉर टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उस गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा उस गैस के काय को, प्रेशर को। क्लियर है। उसके बाद में अपन ने देखे क्या, चार्ल्स लॉ देखे। चार्ल्स लॉ में क्या बोलता है कि कोई भी गैस को अगर अपन ने कांस्टेंट वॉल्यूम के कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में मेंटेन किया, अगर अपन ने कोई भी गैस को क्या करे, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में मेंटेन किए, तो उस गैस का जो प्रेशर, उस गैस का जो वॉल्यूम रहेगा, उस गैस का जो वॉल्यूम रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्या को, उस गैस के टेम्परेचर को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्या को, उस गैस के टेम्परेचर को। तो उसको याद रखने के लिए याद रखना क्या अपन, CP। इसको याद रखने के लिए याद रखेंगे CP, C फॉर चार्ल्स लॉ, और इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, प्रेशर, इसलिए P। उसी तरीके से गेलुकेस लॉ को याद रखने के लिए, गेलुकेस लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम। अगर ये गेलुकेस लॉ बोलता है अगर कोई भी गैस का अपन ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखिए तो उस गैस का जो प्रेशर रहेगा, उस गैस का जो प्रेशर या
रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उस गैस के किसको, टेम्परेचर को। तो इसको याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे अपन, जी फॉर गेल-लुसेक लॉ एंड वी फॉर वॉल्यूम। तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा अपना, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ये पढ़े अपन ने। उसके बाद में अपन ने क्या देखे, कंसेप्ट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है वो देखे अपन ने। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है कि कोई भी गैस का जो वॉल्यूम रहेगा, कोई भी गैस का वॉल्यूम रहेगा जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उस गैस के काय को, नंबर ऑफ मोल्स को। जितने ज़्यादा अपन नंबर ऑफ मोल्स ऐड करेंगे कोई भी गैस के, उतना वो गैस का क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। उसमें से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। तो क्लियर है। तो ये चीज़ अपन ने पढ़े आज। सबसे तीन चीज़ें, आइडल गैस, फिर बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ और गेलुकस लॉ का कॉन्सेप्ट, और लास्टली अपन ने देखे थे क्या, एवोगैड्रोस लॉ। यूनिट आउटकम, यूनिट आउटकम मतलब ये चीज़ आज का लेक्चर पढ़ने से जो चैप्टर है उसमें से कौन सा टॉपिक अपना अचीव्ड हो रहा है। तो सबसे पहला अपना अचीव्ड हो रहा है इवैल्यूएट द वर्क डन एंड थर्मल एनर्जी ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ का अपन क्या निकाल सकते हैं, वर्क डन और थर्मल एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है बॉयल्स लॉ में, वो देखे। सेकेंड चीज देखे अपन ने, वर्क डन एंड थर्मल एनर्जी ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कैसा थर्मल एनर्जी और वर्क डन ट्रांसफर होता है, ये चीज अपन ने आज के वीडियो से सीखे। ये वाले यूनिट आउटकम आज के वीडियो से अपना क्या हो रहा है, अचीव हो रहा है। प्रोग्राम आउटकम जैसे कि मैंने पहले बताया कि कौन से पीओस मैप होंगे आज से इससे, तो वो भी चीज़ें अपन ने देखे। तो ये डिफरेंट पीओ से टेबल में दिए हुए, जो टिक किया हुआ है वो पीओस क्या हो रहे हैं, अपने मैप हो रहे हैं। जो टिक नहीं किया हुआ वो पीओस अपने मैप नहीं हो रही है। तो पीओ वन होता है अपना बेसिक नॉलेज, वो मैप हो रहा है। पीओ टू होता है अपना डिसिप्लिन नॉलेज, वो मैप हो रहा है। पीओ थ्री होता है अपना एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिस, वो मैप हो रहा है। पीओ फोर होता है अपना टूल्स, इंजीनियरिंग टूल्स, वो मैप हो रहा है। पीओ एट हो रहा है अपना इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, आप टीम में इंडिविजुअली इसको असाइनमेंट सॉल्व करेंगे तो ये मैप हो रहा है। उसके बाद में आप इसको अंडर एंड लाइफ लॉन्ग याद रखोगे, इसलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग आ रहा है। तो इस तरीके से ये पीओस क्या हो रहे हैं, सारी चीज़ें आपके आज के वीडियो के साथ में मैप हो रहे हैं। क्लियर है। ये कुछ क्वेश्चंस है जो एमएसबीटी में हरदम पूछे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन आइडियल गैस एंड स्टेट द अजम्पशन मेड फॉर आइडियल गैस। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आइडियल गैस क्या होती है वो लिखना है, और उसके बाद में जो आइडियल गैस के अपन ने 4 अजम्पशंस देखे हैं वो लिखना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप सबसे पहले वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद में अपने जो कॉपी है उस कॉपी में आपको जो समझ में आइडियल गैस क्या है उस वाली डेफिनेशन लिखिए, और उसके बाद में जो अपन ने 4 अजम्पशंस पढ़े वो लिखिए। नेक्स्ट है स्टेट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेल-लुसेक लॉ। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बॉयल्स लॉ क्या होता है वो लिखना है। फिर उसके बाद में वो प्रोपोर्शनलिटी किसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो लिखना है। उसके बाद में उसकी पीवी और टीएस डायग्राम लिखना है, किसके लिए, बॉयल्स लॉ के लिए। उसी ही चार्ल्स लॉ के लिए लिखना है, और वैसे ही गेल-लुसेक लॉ के लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन अपना स्टेट एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ जो अपन ने पढ़े वो लिखना है। क्लियर है। तो ये जो भी क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस आपको एज अ असाइनमेंट के तौर पर लिखना है। क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले वीडियो देखना है। वीडियो देखने के बाद में ये क्वेश्चंस के आपको आंसर्स लिखना है। ये क्वेश्चंस के क्या लिखना है, आपको आंसर्स लिखना है। तो जब भी आंसर आपको बिना देखे ये वीडियो को देखने के बाद में आपको जो समझ में आया वो आंसर लिखिए। आप जब तक के खुद इन्वॉल्व होंगे तब तक के आपको मज़ा नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये जो भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, इसके आपको आंसर्स लिखना है। आंसर किस तरीके से लिखना है वो मैंने बता दिया। बॉयल्स लॉ लिखना है तो बॉयल्स लॉ ने क्या बोला है वो लिखना है। उसके बाद में क्या प्रोपोर्शनलिटी है वो लिखना है, उसको पीवी और टीएस डायग्राम बनाना है। वैसे ही चार्ल्स लॉ का भी करना है, वैसे ही गेल-लुसेक लॉ का भी करना है। क्लियर है। तो अगले वीडियो में अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे डेरिवेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का अपन डेरिवेशन देखेंगे यूजिंग बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के को यूज़ करके अपन कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन जो है उसका अपन क्या देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है वो देखेंगे, और स्पेसिफिक हीट देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये मैक्सिमम टाइम एमएसबीटी में पूछा जाता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिए। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ यूज़ करके कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का डेरिवेशन, उसके बाद में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होता है वो, और स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो थैंक यू। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है इस वीडियो के बारे में, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया, इसके पहले में जो भी आपने
फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, अगर उसमें भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर है। सो थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।